So, good morning, everyone. Today we'll start with a new chapter that is dynamics of fluid flow. So far, we have seen kinematics of fluid. Uh, so this is our new chapter. So, by definition, you can say that in kinematics of flow, what we were doing was we were considering the motion of the fluid flow, but we were not considering the force which is causing the motion. But in dynamic flow, the motion of the fluid because of the force which is happening, that force is taken into consideration, so that part is related to dynamics of fluid flow. Okay, so as you can see, it is written over here. In the previous chapter we have studied the velocity and acceleration at point in a fluid flow without taking into consideration the force causing the fluid flow. As I've told you, in kinematics we have uh, not taken the force which is causing the flow, but in this chapter includes the study of force causing the fluid flow. So we need to consider the force which is causing the flow. So thus the dynamic of fluid flow is the study of fluid motion with the forces causing flow. Okay. The dynamic behavior of the fluid flow is analyzed by Newton's second law of motion. So this is very important, Newton's second law, which relates to the acceleration with the force, which is related with the acceleration with the force. The fluid is assumed to be incompressible and non-viscous, and there is some certain assumption. Okay, so in this the fluid is assumed to be what? Incompressible fluid. Okay, that means its density will not change anywhere, as well as it is a non-viscous flow. Okay, so these are the certain conditions for dynamics of fluid flow. Okay, after that, this is very important equation of motion as per the Newton's law, second law. According to the Newton's second law of motion, the net force Fx acting on the fluid element in the direction of x is equal to the mass of the fluid element multiplied by the acceleration. So in order to calculate the force, we need to multiply the mass with the acceleration. That is your second law of Newton. Okay. After that, this is our main equation. Okay, force Fx equals to what? Mass into acceleration. After that, force can be because of gravity, force can be because of pressure, force can be due to viscosity, force can be due to turbulence, force can be due to compressibility. So if you are considering a force, you need to consider all these forces. So Fx becomes what? Addition of all these forces. So what will be the value of Fx? Fx equals to what? Fgx, which is the gravity force, and next is your Fpx, which is your pressure force. Then there will be Fvx, where this is because of the viscosity. Then there will be Ftx, this is because of the turbulence, and then there is Fcx, which is due to compressibility. So these are the forces which we need to consider. So if we neglect what? If the force due to compressibility, if we neglect force due to compressibility and Fc, when the Fc is negligible, the resulting net force, we will be left with only this value. Fx equals to what? Fgx plus Fpx plus Fyx plus Ftx. So this equation together is called as the Reynolds equation. Okay. So in a similar manner, we consider Ft as negligible. Okay, if we remove this value, we are left with Fgx plus Fpx plus Fyx, and this equation is called as what? If we neglect the turbulence force, okay, then this equation is considered to be a Navier force, Stokes equation. Okay. After that, if the flow is assumed to be idle, if the flow is assumed to be an idle flow, uh, then the viscous force, this force is also considered to be zero, and the equation of motion is known as the Euler's equation of motion. So we are left with what? And Fx equals to what? Fgx plus Fpx. So in Euler's equation of motion, we need to consider only the gravity force as well as the pressure force. These two forces are only considered in Euler's equation. Okay, and no other forces are taken into consideration in Euler's equation. Okay. After that, we'll see about Euler's equation of motion and its derivation. Because from Euler's equation of motion, we have derived the Bernoulli's equation. So the reason behind telling you all this was because we have to derive Euler's equation, and in that we need to consider the force due to gravity and the force due to pressure. Okay. Now we'll start with the Euler's equation of motion. This is the equation of motion in which force due to gravity
देखो इसमें अपने को चीजें गिवन है कि कौन सी फोर्सेस अपने को कंसिडर करना है. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी and pressure are taken into consideration. Okay, so we will only consider the force due to gravity and force due to the pressure. Okay, this is derived by considering the motion of fluid element along streamline. Now consider streamline in which fluid is taking place in this direction. Okay, so we are considering the streamline. As you can see that there is a streamline drawn over here and the direction is given as S. Okay, consider cylindrical element of cross section diameter, cross section area as dA and length as ds. So there is a small cylindrical element which has been considered. It is having this area, cross section area, as small dA. Okay, and the length is considered to be as ds. Now the force acting on the cylinder are. Now first we will consider what are the forces acting. First will be the pressure force. First will be acting on the downward side. Okay, so force will be acting on certain area, so that area, cross section area, is given by small dA. Okay, so the first pressure force is what? Pressure into dA. How this is described? As we know that pressure is equals to what? Force upon area. So in order to calculate force, pressure force, we need to what? Multiply pressure with area. So in this case area is dA, so we are multiplying it with your dA. Okay, after that the second force will be acting on the other side. Okay, and it will be different from your bottom force. So we are considering that by moving the fluid while moving on this direction, it has attained some pressure. So because the fluid will flow only in this case when the pressure difference, the pressure on this side and this side is not the same, there is some difference, otherwise fluid will not flow. So for that we are considering that the pressure on the other side is what? P plus del P upon del S into ds. Okay, and this will be also acting on this area, and this area is also given as dA. Okay, so this is the second force, pressure force. After that we also need to consider the weight element. Okay, so as you all know that the weight will be acting from the center. Okay, so as it is acting at a certain angle theta, so we have to resolve this equation into two elements. One will be your sine theta, one will be your cos theta. Okay, so weight is represented by mass into gravitational force into what? This will be sine theta, this will be m g cos theta. ओके, अभी अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो फोर्स है वो बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स जो फ्लो की तरफ आ रहा है, तो अपने को सिर्फ यही कंसिडर करना है. ठीक है, अब इस एम जी कॉस थीटा को उसने कैसे रिप्लेस किया है? रो जी डी इन डी ए इंटू डी एस. अब इसको अपन रो जी ए इंटू डी एस कैसे करेंगे? इसको अपन कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ओके, सो कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे मास है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? डेंसिटी का लिख सकते हैं, बिकॉज मास और डेंसिटी का रिलेशन है वो क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. अब अपने को सिर्फ डेंसिटी चाहिए लेकिन वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वॉल्यूम अपना किससे इक्वल होगा? और ये पूरे एरिया का ले रहे हैं अपन, वेट अपन पूरे टोटल बॉडी का ले रहे हैं, तो ये वॉल्यूम कैंसिल करने के लिए अपने को वॉल्यूम किसका लेना पड़ेगा? एरिया ऑफ द सिलेंडर इनटू व्हाट? दिस लेंथ, बिकॉज सिलेंडर की लेंथ कितनी है? ds. ओके, तो आप ये m को अब रिप्लेस कर सकते हो. m को अपन कैसे रिप्लेस करेंगे? बाय रो इनटू व्हाट? वॉल्यूम की जगह अपने को क्या लिखने का है? a इंटू ds. ओके, और बचता है अपने पास g इंटू कॉस थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रही है आपको, रो g dA ds इंटू यहाँ कॉस थीटा भी है. ठीक है, वो लिखना भूल गया है. ओके, दिस इज अबाउट द वेट एलिमेंट. ये अपने, सॉरी यहाँ पे मैंने डी लिखने को लिखा है, डी. ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या करेंगे? ये तीन फोर्सेस अपनी जो है कंसिडर करना है. अगर अपने को नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? नेट फोर्स विल बी द
वी नीड टू माइनस ऑल द फोर्सेस। ओके, सो पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वाली फोर्स पी डी ए माइनस वॉट सेकेंड फोर्स प्रेशर फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन, ओके, माइनस द थर्ड फोर्स विच इज योर वेट फोर्स। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या कंसिडर करना है, ये अपनी एक इक्वेशन हो गई है। ओके, अब नेक्स्ट अपने को क्या कंसिडर करना है, नेक्स्ट विल कंसिडर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है आपका, फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगेन अगर ये मास इनटू एक्सेलरेशन को अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू इन दिस फॉर्म रो डी ए डी एस, अपने को क्या करना पड़ेगा, अगेन वैसे ही अपन रो इनटू क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट, डी ए इंटू एस। अभी इस प्रीवियसली करके दिखाया मैंने आपको, वैसे ही करना है। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्सेलरेशन। तो ये जो आपका फोर्स है, ये भी आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो फोर्स इंटू रो इंटू डी इंटू डी एस इंटू एस। अब ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये दोनों भी फोर्स क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है, बिकॉज ये भी नेट फोर्स है आपकी, ये भी नेट फोर्स है। तो ये दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ए एस को अपने को क्या करना है, रिप्लेस करना है, बिकॉज ए एस जैसे कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, ए एस को कन्वर्ट करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज अबाउट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं ऐसी। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डी वी अपॉन डी टी तो है अपने पास, अपन दोनों तरफ में क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे डी एस लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ये अल्टीमेटली कैंसिल होकर क्या होने वाला, वन ही बनने वाला, तो डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, क्या होता है कि डी वी, ठीक है, या फिर डी एस अपॉन डी टी जो होता है उसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं बाई टी। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी को किससे रिप्लेस किया है, टी से। तो डी एस अपॉन डी टी जो है उसको अपन रिप्लेस कर रहे हैं किससे, वी से। तो फाइनली अपने पास ए एस का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, ए एस का वैल्यू, फाइनल वैल्यू आना चाहिए आपका वी इंटू डी वी अपॉन डी एस। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा की चीज़ें लिखी हुई है, ये नहीं है, सिर्फ इतना ही बचता है आपका ए एस का पार्ट। ठीक है, ये भी गलत दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा आपका एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये अपन क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में अपन इसको पुट करेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें अपन क्या करते हैं, जो बाकी जो वैल्यू अपन उनको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। ये फोर्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, ये फोर्स को राइट हैंड साइड पर रखेंगे। तो अपन जब इसको ओपन अप करेंगे, देखो पी इंटू डी ए, ठीक है, माइनस वॉट, ये डी ए जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू डी ए, तो वो क्या होने वाले, कैंसिल होने वाले। ठीक है, बचता क्या है अंदर में, माइनस डेल पी बाय डेल एस इंटू डी एस। ठीक है, तो ये अपने पास बचने वाला है माइनस डेल पी बाय डेल एस इंटू वॉट, डी एस इंटू डी ए। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या बचेगा, सेम एज इट इज ये बचेगा। ठीक है, तो वैसे का वैसे लिख देते हैं, माइनस रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा। अब इसको अपन ने को किससे इक्वेट करना था, ये इक्वेशन से इक्वेट करना था, रो डी डी ए इंटू डी एस, और ए एस की जगह क्या लिखने वाले अपन, वी इंटू डी वी अपॉन डी एस। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन रो डी ए डी एस, और एक्सेलरेशन की जगह लिया अपन ने रो डेल बी अपॉन डेल एस। ओके, नाउ व्हाट विल डू, विल डिवाइड both the equation by what, we are dividing the equation by what, rho ds dA। ओके, तो अपने पास अगर ये इक्वेशन को अपन सारे ही इक्वेशन को रो डी एस डी एस अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो रहा है, डी एस यहाँ पे है, यहाँ पे भी डी एस अवेलेबल है, वो कैंसिल हो जाएगा, ए अवेलेबल है, डी अवेलेबल है। तो अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है, डेल पी अपॉन डेल एस ओनली। तो डेल पी अपॉन डेल एस, यही इक्वेशन बच रही। हाँ, एक और चीज़, ये रो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो रो यहाँ पे नीचे में रह जाएगा। ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन में आते हैं। यहाँ पे देखो अब रो भी आ रहा है, तो रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जी रह जाएगा, जी ए नहीं है वहाँ पे, डी ए कैंसिल हो रहा है, डी एस कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा बचा, तो माइनस जी कॉस थीटा। ठीक है, ये अपनी सिर्फ वैल्यू बच जा रही है इस वाले इक्वेशन में। नेक्स्ट वाले में आते हैं अपन, रो इंटू डी ए इंटू डी एस। तो रो डी ए इंटू डी एस, तो एज इट इज यही कैंसिल हो जा रहा है, बच रहा है अपने पास बी इंटू डी वी बाई डी एस। सो इसको अगर अपन रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं अपन ये इक्वेशन को, यहाँ उधर जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल पी बाय रो इंटू डेल एस प्लस जी इंटू कॉस थीटा, उधर एक लॉज पॉजिटिव हो जा रहा है, प्लस वी इंटू डी वी अपॉन डी एस। ये गलत लिखा हुआ है, आई थिंक ये बी नहीं है, वी इंटू डी वी अपॉन डी एस इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसी को अपन क्या बोलते हैं, आपका यूलर्स इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है,
और इसको और अच्छे तरीके से अगर लिखने का है तो यहाँ पे अगर अपन कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा को अपन रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा को रिप्लेस कैसे करने का है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इस तरीके का। तो ये वाला जो साइड है, या फिर अपन अपन अज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक डेटम से इसको डिराइव किया हुआ है। ये वाला पॉइंट जो है एक सर्टेन पॉइंट से, ये वाला पॉइंट एक सर्टेन पॉइंट से। तो अपन क्या करेंगे, ये एक पॉइंट आ गया और यहाँ से एक पॉइंट आ गया, तो एक ट्रायंगल फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको अपन डी जेड बोल रहे हैं, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है उसको डी एस बोल रहे हैं। तो कॉस थीटा क्या होगा आपका, ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कैसे कंसिडर करेंगे, एंगल के अपोजिट वाले को अपन क्या अज्यूम करते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया आपका बेस, तो ये हो गया डी जेड, ठीक है, और ये वाला क्या होगा उसका हाइपोटेनस डी एस। तो कॉस थीटा को अपन कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, डी जेड बाई डी एस। तो सिमिलरली अपन यहाँ पे कॉस थीटा की जगह डी जेड बाई डी एस लिखने वाले हैं। तो ये यहाँ पे 1/रो अपन ने बाहर निकाल के बच गया अपने पास डेल पी बाई डेल एस, ठीक है, ये एस होना चाहिए, इसने रो लिख दिया गलत है। जी इंटू कॉस थीटा की वाली जगह अपन क्या लिख रहे हैं, डी जेड बाई डी एस, ओके, प्लस वी इंटू डी वी बाई डी एस इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगर अपन और इसको एलाबरेट करने की कोशिश करें तो अपन कैसे कर सकते हैं, अपने पास यूलर्स इक्वेशन क्या आना चाहिए, अब इसमें एक और चीज है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एस है, वैसे तो इसने गलत लिखा है, ये क्या आने वाले डी एस ही आने वाले। तो नीचे में सब जगह आप देखेंगे डी एस है, ये डी एस है, डी एस है, कॉमन आ जाएंगे 1/ds, ठीक है। और क्या होगा, वो वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी क्या हो जा रहा है आपका 0 हो जा रहा है। तो अपने पास बच रहा क्या है, डेल पी बाय रो प्लस जी इंटू डी जेड प्लस वी इंटू डी वी, ये अपने पास इक्वेशन बचती है, ठीक है। और इसी इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यही अपने को डिराइव करना था, पेपर में बहुत तरह पूछता है कि किस तरीके से डिराइव करना है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वहाँ पे आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, यू नीड टू कंसीडर ऑल दी 3 फोर्सेस, उनको एक दूसरे से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नेट फोर्स आ जाएगा। उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ अपन अप्लाई करेंगे, ये फोर्स को अपन एज्यूम करेंगे दे आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। इसको रिप्लेस करने के बाद में अपन क्या करेंगे, सबको पुट आउट करेंगे, पुट आउट करने के बाद आपका जो इक्वेशन बच के आता है वो आता है आपका यूलर्स इक्वेशन, ठीक है। अब यूलर्स इक्वेशंस को अगर अपने को कन्वर्ट करना है बर्नौलीज इक्वेशन में, सो वी नीड टू डेरिवेट ऑल द इक्वेशन, ओके, सॉरी इंटीग्रेट ऑल दिस इक्वेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ डेल पी बाई रो प्लस, एक एक करके सबको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट दिस वैल्यू, इंटीग्रेट दिस वैल्यू, इंटीग्रेट दिस वैल्यू, ओके। एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू इज नथिंग बट योर कांस्टेंट, उसको जाने दो, ठीक है। तो अगर अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी तो अपने पास क्या बचता है, पी बाय रो, ठीक है। अगेन इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड तो अपने पास क्या बचता है, जी इंटू जेड, ठीक है। अगेन इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी तो वहां पे क्या आ जाएगा अपने पास, वी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो इक्वेशन बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे अपन एक और चीज कर सकते हैं, ये इक्वल्स टू वर्ड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो अपन क्या करेंगे, ये जी को अपने को हटाना है, तो जी को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, सारे ही जो इक्वेशन है उसको अपन क्या करेंगे, जी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये साइड कांस्टेंट है तो इधर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर अपन यहाँ पे जी मल्टीप्लाई करते हैं सब जगह तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज डिवाइडेड बाय जी, दिस इज डिवाइडेड बाय जी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी बाय रो जी प्लस यहाँ पे जी जी कैंसिल हो जा रहा है, बच रहा है सिर्फ जेड, और यहाँ पे कितना बच रहा है, वी स्क्वायर बाय 2g। सो दिस इज नथिंग बट योर बर्नौलीज इक्वेशन, यही आपकी बर्नौलीज इक्वेशन है, इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, जहाँ पे अपने वो इक्वेशन का काम पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। बर्नौलीज इक्वेशन में ये वाला जो पार्ट होता है पी बाय रो जी, इट इज कॉल्ड एज द प्रेशर एनर्जी, ओके। और द यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड और प्रेशर हेड, इसी को प्रेशर हेड भी बोला जाता है बिकॉज दिस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द प्रेशर। ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, और काइनेटिक हेड इसको अपन काइनेटिक हेड भी बोल सकते हैं, वी स्क्वायर बाय 2g को, ओके। आफ्टर दैट जेड वाला क्या है, दैट इज द पोटेंशियल पर यूनिट ऑन द पोटेंशियल हेड, इसको अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल हेड, ठीक है। पोटेंशियल हेड कब क्रिएट होगा, जब सर्टेन हाइट पे अपन कुछ ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो पोटेंशियल हेड क्रिएट होगा, ये फ्लो की वजह से क्रिएट होगा, दिस विल क्रिएट बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो ये तीन चीजें
जो बर्नौलीज इक्वेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन में कुछ अजम्पशंस भी किए जाते हैं, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन का अजम्पशन में ये आता है कि the following are the assumption made in the derivation of following Bernoulli's equation. Firstly, the fluid is considered to be an ideal fluid. अब फ्लूइड अपन कैसा कंसिडर कर रहे हैं? इट इज एन आइडियल फ्लूइड. विस्कोसिटी जिसमें कुछ भी नहीं है अपन अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जीरो विस्कोसिटी. द फ्लो इज अ स्टडी फ्लो. फ्लो कैसा हो? स्टडी फ्लो है, ठीक है. द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल. आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, वैसा फ्लो है. एंड द फ्लो इज इरोटेशनल. वो क्या कर रहा है? रोटेट भी नहीं कर रहा है. तो ये 3-4 कंडीशन है जो अजम्पशन है वो अपने को कंसिडर करना पड़ता है बर्नौलीज इक्वेशन में. और ये हो सकता है आपको पेपर में पूछे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको याद रखें, ठीक है. पहला है आपका द फ्लूइड इज आइडियल फ्लो, ठीक है. सेकंड, द फ्लो इज अ स्टेडी फ्लो. द फ्लो इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो एंड द फ्लो इज इरोटेशनल. अगेन, फ्लूइड इज एन आइडियल फ्लो, फ्लो इज एन स्टेडी फ्लो, flow is what? Incompressible flow, and flow is irrotational flow. So this is about the assumption of Bernoulli's equation. Now in the next part we will start with the numericals related to this. So, okay, so I will try to do the first numerical, later we will do all the other numericals. So the first problem, it is saying that the water is flowing through a pipe of 5 centimeter diameter under a pressure of 29.4 Newton per centimeter square. So a water is flowing from a pipe which is having a diameter of 5 centimeter. It is having a pressure of 29.43 Newton per centimeter and with a mean velocity of 2 meter per second. Find the total head or the total energy per unit weight of the water at a cross section which is 5 meter above the datum line. So we need to consider the total head. Okay, so total head means what? Addition of this, that is the pressure head plus kinetic head plus datum head. So we need to find out the total Bernoulli's equation. Okay, so first we'll write all the given parameters. The given parameters, we have got the diameter of pipe as 5 centimeter. So converting it into meter, we get 0.5 meter. The pressure is in Newton per centimeter square. So we need to convert it into what? Meter square. So 29.43 multiplied by 10 to the power 4 because it is in centimeter. Otherwise it will be 10 to the power 2, yeah, or 100. Okay. After this, the velocity is 2 meter per second, and datum head is z equals to what? 5. So total head is equals to what? Pressure head plus kinetic head plus datum head. So pressure head you can calculate it by P upon rho g. So here we have got 29.43 into 10 to the power 4. Because the fluid flowing is water, the density will be 1000 into g is 9.81. So the pressure head is coming out to 30 meter. Okay. Now the kinetic head. The next one is kinetic head v square by 2g. So we have got the velocity of as 2 meter per second, so 2 into 2. Okay. Okay, so the kinetic head, you know that v square by 2g. So 2 into 2 in 2 into 2 divided by 2 into 9.81. So that will give you the value of 2.204 meter. Okay. Now the total head is what? Addition of all this, that is pressure head plus kinetic head plus datum head. So P by rho g plus v square by 2g plus z. So 30 plus 0.204 plus 5, that will give you the total head as 35.204. So in this way you can calculate the total head of all the other equations. Okay, and today will conclude over here only because other numbers are a little complicated. So we'll see in the next class. And for today, that is this much is okay. Okay, thank you so much.